کہ اس کے مقابلے میں اگر ہم پرائیویٹ سکولز کو ہم دیکھیں تو ان کا رزلٹ بہت ہی شاندار ہے۔ گورنمنٹ میں مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ تھی اس میں جو ٹیچرز آئے ہیں وہ کافی قابل ٹیچرز آئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں کو پریفر کرتے ہیں اور سرکاری گاڑیوں میں اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں ڈراپ کرتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ۔ یہ جو قابل بچے ہیں ان کے فارم جو ہیں وہ ریگولر بیسس پہ بیچتے ہیں، جو کچھ کمزور ہوتے ہیں یا نالائق ہوتے ہیں ان کے فارم نہیں بیچتے ہیں۔ لیکن کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہیں جو نہ اسکول جاتے ہیں نہ وہ بچوں کو توجہ سے پڑھاتے ہیں، وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، ان کو معلوم۔ خیال میں یہ ٹھیک بات نہیں، اگر لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر سکھائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا۔ ناظرین، آج گلگت بلتستان کی تعلیمی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ حال ہی میں فیڈرل بورڈ کا جو رزلٹ سامنے آیا ہے تو اس سے پتہ یہ لگا کہ گلگت بلتستان کے جو سرکاری سکول ہیں ان کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، جبکہ پرائیویٹ سکولوں کا اچھا رزلٹ آیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے تجزیہ نگار ہیں، سینئر اور پروگرام ڈائریکٹر ہیں عالم صاحب۔ عالم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتائیں کہ یہ جو حال ہی میں رزلٹ آیا فیڈرل بورڈ کا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہمارے سرکاری سکولوں میں تعلیمی معیار اتنا گر چکا ہے کہ تین اضلاع میں جو ہے کئی سکولوں کا تو صفر رزلٹ آیا؟ بہت شکریہ طاہر رانا صاحب۔ جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ سکولوں کا جو رزلٹ ہے وہ بہت ہی مایوس کن رزلٹ ہے، اس حوالے سے بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو بھی رزلٹ 9 کلاس اور 10 کلاس کا جو رزلٹ ابھی آیا ہے، اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کے سکولوں کا جو رزلٹ ہے وہ بالکل یعنی مایوس کن ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم پرائیویٹ سکولز کو ہم دیکھیں تو ان کا رزلٹ بہت ہی شاندار ہے۔ اسپیشلی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پبلک سکول اینڈ کالج جوٹیال میں جو ادارہ ہے وہاں پہ 2 بچوں نے بہت ہی زبردست مارکس لیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم گلگت میڈیا کی پوری ٹیم کی جانب سے ان بچوں کو اور ان کے والدین کو ہم مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے کے جنہوں نے بالکل۔ اور اس کے بعد جہاں تک آپ کا سوال ہے تو گورنمنٹ کے سکولوں کا رزلٹ جو مایوس کن ہونے کی وجوہات ہیں، وجوہات یہ ہیں کہ گورنمنٹ کے سکولوں میں اس توجہ سے پڑھائی نہیں ہوتی ہے جس توجہ سے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھائی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کے سکولوں میں جو ٹیچرز تنخواہیں لیتے ہیں وہ لاکھ سے اوپر ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو پڑھائی اس حساب سے نہیں ہوتی ہے، جبکہ پرائیویٹ سکولوں میں تنخواہیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایون یہاں تک کہ میرے خیال میں 10,000 15,000 یا 20,000 ٹھیک ہے، میکسیمم 25,000 ہوگی، اتنی ہی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ جبکہ پرائیویٹ سکولوں کے اندر ہم دیکھیں تو نئے ایجوکیٹڈ لوگ پڑھاتے ہیں، یعنی ابھی ریسنٹلی جو فارغ ہو کے آتے ہیں، جنہوں نے ماسٹرز کیے ہوتے ہیں، ایم فل کیے ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی یونیورسٹیوں سے جدید تعلیم حاصل کر کے آئے ہوئے ہیں وہی جو ہیں وہ اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں۔ جبکہ اگر گورنمنٹ سکولوں میں دیکھیں تو پرانے ٹیچرز ہیں، وہ نہ اتنے ٹرین ہیں، نہ اتنی ان کی ایجوکیشن ہے۔ بے شک ایجوکیشن ہم سب کے بارے میں نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہیں جن کی ایجوکیشن بھی اتنی ہائی ایجوکیشن نہیں ہے۔ لیکن وہ جو گورنمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی تو ظاہر ہے کسی پروسیس کے تھرو APSC پاس کر کے آتے ہیں، وہ کوئی آسان ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، پھر یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ تو پچھلی گورنمنٹ میں مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ تھی اس میں جو ٹیچرز آئے ہیں وہ کافی قابل ٹیچرز آئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کے ٹیچرز لگائے گئے ہیں اور کیسے مطلب وہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہیں۔ تو اگر اس کو ہم اس کا تقابل کریں، اس کا جائزہ لیں، اس تقابلی جائزہ کو ہم دیکھیں تو یہ جو ہیں معیار جو ہے اسی وجہ سے گر رہا ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر جو ٹیچرز ہیں یا گورنمنٹ کے اندر جو ایجوکیشن کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے سکولوں میں نہیں جاتے ہیں،
वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, खुद गवर्नमेंट के स्कूलों में वो पढ़ाते हैं। तो अब ये दोहरा सोचने वाली बात है कि भाई वजह क्या है। अगर गवर्नमेंट के स्कूलों का मायार अच्छा होता, वही टीचर मेहनत से वो पढ़ाते, तो अपने बच्चों को अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। ये कई अरसे से ये बात हम देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया में भी, अखबारात में भी ये खबर आती है, ये बातें चल रही होती हैं कि अब गवर्नमेंट के जो एजुकेशन के खासकर जो जिम्मेदारान हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाएं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। बल्कि गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों को प्रेफर करते हैं और सरकारी गाड़ियों में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ड्रॉप करते हैं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी सरकारी गाड़ियों सही में है। एक तरफ ये तो मसला आपने है। ये बताया आलम साहब कि असातिज़ा जो हैं वो इतने मयारी जो तालीम है वो नहीं दे रहे सरकारी स्कूलों में, लेकिन आप ये नहीं समझते कि वालिदैन भी, चूँकि कोई बच्चा अगर कोई सुस्त है तालीम में, उसको ले जाके गवर्नमेंट स्कूल के हवाले करते हैं, उसके बाद पूछते भी नहीं है। और दूसरा महकमा तालीम भी तो ज़ाहिर है उसका क्या काम है, वो फिर गवर्नमेंट टीचर्स की तरबियत के हवाले से या स्कूलों के अंदर तालीमी मयार को बुलंद करने के लिए क्यों नहीं एक्टिव हो रहा। यही तो रो रहे हैं सारे कि यार ये ट्रेनिंग क्यों नहीं होती है इनके। एक आध ट्रेनिंग मेरे ख्याल में आगा खान एजुकेशन वाले मेरे ख्याल में कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं, तो अब ये एक आध ट्रेनिंग से मेरे ख्याल में ये टीचर इतने ट्रेन नहीं हो सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट को इस वक्त अगर इनका जो सेक्रेटरी है एजुकेशन का, अगर वो सुन रहे हैं तो वो कम से कम इस बात की तरफ तवज्जो दें कि अपने टीचर्स को ट्रेन करें कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। और आजकल जो सब्जेक्ट हैं या नया जो सिलेबस है उसको कैसे पढ़ाना चाहिए, तो एक ट्रेनिंग का सिलसिला होना चाहिए। और जहाँ तक एक और बात है कि एक चीज़ और भी हमने यहाँ पे सुनी है, प्राइवेट स्कूलों में एक और चीज़ हमने ये सुनी है कि ये जो काबिल बच्चे हैं उनके फॉर्म जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे बेचते हैं। जो कुछ कमज़ोर होते हैं या नालायक होते हैं उनके फॉर्म नहीं बेचते हैं, वो उनको प्राइवेट करते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। अब सिर्फ हम एलिगेशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही ना लगाएं। यहाँ एक ये बात भी हमने सुनी है कि जो काबिल बच्चे हैं उनके फॉर्म रेगुलर बेचते हैं। हकीकत है आलम साहब कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर वो अपने ही स्टूडेंट हैं, इवन उनका टेस्ट लेते हैं और उनमें से अगर वो उनके टेस्ट में पूरा नहीं उतरते हैं तो उनको प्राइवेट करते हैं, और जो वहाँ से पास होते हैं उनको वो रेगुलर करते हैं। इसी वजह से उनका रिजल्ट अच्छा आता है। अच्छा आलम साहब, दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने जैसा कि कहा कि असातिज़ा की वजह से या असातिज़ा की तरबियत के मसाइल हैं, तो असातिज़ा तो हुंज़ा में भी वही हैं। हुंज़ा में जो हाल ही में जो रिज़ल्ट आया वो 83% आया है, जबकि दियामर में 20% आया है। अब असातिज़ा तो हुंज़ा के भी वही सरकारी स्कूलों के असातिज़ा हैं, वो जिस तरीके से भी लगे हैं, इसी तरह दियामर के भी असातिज़ा हैं, अस्तौर के भी हैं। ताहिर साहब, बात फिर वही है ना कि अब असातिज़ा अपनी जिम्मेदारियां कहाँ तक वो पूरी करते हैं या निभाते हैं। तो जहाँ के असातिज़ा जो हैं वो अगर मेहनत से पढ़ाते हैं, तवज्जो देते हैं, रेगुलर स्कूलों में वो जाते हैं, बच्चों को वो तवज्जो से पढ़ाते हैं। और ये भी आपने एक सवाल पहले किया था कि वालिदैन का कितना हाथ होता है, तो हुंज़ा के लोग आपको पता है कि ज़्यादा एजुकेटेड हैं और ज़्यादा तालीमी उन सरगर्मियों में अपने बच्चों को वो हमेशा उनकी तमाम एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं। तो वो जाहिर है वो स्कूलों में जाके अपने बच्चों को भी चेक करते होंगे, तो इसी वजह से शायद उनका रिज़ल्ट अच्छा आया हो, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। सरकारी असातिज़ा स्कूलों के असातिज़ा का ये भी कहना है, जो मौजूदा जो हाल ही में रिज़ल्ट आया इसके बाद हमने देखा कि कुछ सरकारी असातिज़ा ये कह रहे हैं कि जो फेडरल बोर्ड ने नया सिस्टम लाया है जो डिजिटल मार्किंग का, इसकी वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो गए हैं। और दूसरा ये भी कि कराकुरम बोर्ड से चूँकि अब ये फेडरल बोर्ड में पेपर्स हो रहे हैं, तो उस वजह से भी नंबर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को आ रहा है। बात ये ताहिर साहब कि ये तो सबके लिए है ना, वो तो प्राइवेट बच्चों के लिए भी है, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए भी वही सिस्टम है, वही मार्किंग है। अब इनके लिए कोई नया तो नहीं है। अगर मार्किंग है तो सबके लिए वही डिजिटल मार्किंग है, अगर नहीं है तो फिर सबके लिए वही सिस्टम है। यहाँ पे अगर इस तरह अपने आप को यानी बरीउज़ ज़मा करार देना, ये मेरे ख्याल में मतलब कहे न कहे कोई मसला है जिसकी वजह से ये रिजल्ट है। हालांकि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का अपना हल्का है अस्तौर का, वहाँ पे भी तालीमी सूरत हाल बेहतर नहीं है, ज़बू हाली का शिकार है। इसी तरह दियामर और खरमंग में ये गांच में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि यहाँ के तालीमी जो इस वक्त जो सिचुएशन है इसको बेहतर बनाने के लिए महकमा तालीम को क्या करना चाहिए?
मैं तो ये समझता हूँ ताहिर साहब कि देखें, अब हमेशा हर साल अगर आप देखें तो कितने स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटियों से फारिग होकर आते हैं। अब आपकी कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी हज़ारों की तादाद में बच्चे जो हैं वो मास्टर्स करके फारिग होते हैं, अच्छा कुछ एमफिल करके फारिग होते हैं, और दीगर पाकिस्तान के दीगर शहरों में जाके यूनिवर्सिटियों में बच्चे जाके पढ़ के आते हैं। काबिल बच्चे हैं, ये नहीं कि नाकाबिल हैं। आजकल जो बच्चे पढ़ते हैं वो जदीद तालीम से वो आरास्ता हैं। मैं समझता हूँ कि अब जो हमारे सीनियर टीचर साहिबान हैं वो अपने हिसाब के मुताबिक उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। अब नए जो जदीद तालीम हासिल करके जो नए कैंडिडेट आए हैं उनको मौका देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ ख़ासकर जो एजुकेशन सिस्टम है इसको मेरिट के बुनियाद पे जो है ना अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको मालूम है कि एक उस्ताद ही बच्चों का मुस्तकबिल बनाता है। क्या ख्याल है? अब अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो उस्ताद की कितनी बड़ी रिस्पेक्ट है, कितनी कदर है। वजह यह है कि वहाँ पे जो सबसे काबिल जो स्टूडेंट होता है या जो तालीम से फारिग होता है बंदा, वो प्रेफर करता है कि मैं टीचर लगूँ। वजह यह है कि टीचर की रिस्पेक्ट भी है, इज़्ज़त भी है और मयार भी है, उनकी सैलरी भी अच्छी है। यहाँ पे ये भी एक अलमिया है कि उस्तादों उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं है, इज़्ज़त नहीं है। और एक 19 स्केल का उस्ताद है तो उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी अगर आप एक पुलिस का जो ASI है उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। वजह यह है कि अब उस्ताद जो है बेचारा अपना स्केल तो है, उसके पास काबिलियत तो है, लेकिन वो रिस्पेक्ट उसको नहीं मिल रही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है आलम साहब कि चूँकि गवर्नमेंट टीचर जो होता है उसकी जॉब सिक्योर होती है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, तो वो अपना किसी न किसी तरीके से वो टाइम गुजारता है, जबकि प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है उसको रिजल्ट देना पड़ता है, वरना वो जो है वो उसके खिलाफ एक्शन liया जाता है। ये उनसुर भी लाजमी शामिल है इसके अंदर। हम तमाम टीचर्स के ऊपर तो ये बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो न स्कूल जाते हैं न वो बच्चों को तवज्जो से पढ़ाते हैं, वो अपना टाइम पास करते हैं। उनको मालूम है यार महीने का आखिर में मेरे अकाउंट में सैलरी ना आना है। तो ये भी एक बड़ा एक मसला है गवर्नमेंट टीचर्स के अंदर। लेकिन प्राइवेट जैसे स्कूलों में आपने कहा कि अब लोग फीसें देते हैं, बारी बार फीसें जब पे करते हैं तो वो रिजल्ट भी मांगते हैं जाहिर है उस इदारे से। तो अब जाहिर है उनके जो जिम्मेदार हैं वो टीचर्स के ऊपर भी सख्ती करते हैं, वो टीचर्स भी चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, एक और जो हमने देखा, जो हालिया रिजल्ट आया उसके बाद हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो फर्स्ट और सेकंड और जो पोजीशन होल्डर तलबा तालबात थे उनके घरों में जाकर उनकी हौसला अफजाई की। किस तरह देखते हैं ये इकदाम, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? ये ताहिर साहब चीफ सेक्रेटरी का बहुत ज़बरदस्त इकदाम है। ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हमने देखा कि एक चीफ सेक्रेटरी जो है वो बच्चों के घर जाके उनकी हौसला अफजाई करता है। इससे पहले मेरे ख्याल में हमें तो नहीं मालूम कि कोई चीफ सेक्रेटरी जाके यानी हर बच्चे के घर वो गए जिन्होंने पोजीशनें लिए हैं। अब इस दफ़ा के रिजल्ट की बात नहीं है, पिछले रिजल्ट की भी बात है। पिछले उनके पास भी वो उनके घरों में जाके उनकी हौसला अफजाई की है। तो अब हम ये गुजारिश करेंगे वज़ीर आला साहब से भी कि वज़ीर आला साहब भी बच्चों को अगर इस तरह उनको अपने ऑफिस में बुला के अगर उनकी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई करे, इसी तरह सेक्रेटरी एजुकेशन है वो भी थोड़ी हौसला अफजाई करे, तो जाहिर है बच्चे फिर उनके अंदर एक कर्ज पैदा होता है, वो एक मज़ीद मेहनत करते हैं। पीछे जो बच्चे आने वाले बच्चे हैं वो भी कहते हैं कि यार जब चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला साहब जो है वो हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं तो हमें मेहनत करके कुछ न कुछ नंबर हासिल करने चाहिए। मैं आपको अपने ज़माने की एक बात सुनाऊंगा। ये हम गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 गिलगित में पढ़ते थे, तो उस ज़माने में जो है वो शायद वीकेंड के बाद जब हम स्कूल जाते थे, संडे के बाद मंडे को जब हम स्कूल जाते थे, तो कभी कभार मतलब 6 महीने में 3 महीने में एक आध दफ़ा सफाई की चेकिंग होती थी। यानी जो बच्चा ज़्यादा साफ़ सुथरा होकर आता था, उसके कपड़े इस्त्री होते थे, जूते पॉलिश होते थे, बाल उसके ठीक होते थे, सेट होके वो आता था बच्चा, तो उसको इनाम दिया जाता था। तो अब नेक्स्ट वीक जो है वो सारे बच्चे इसी लालच में वो सफाई सुथराई के साथ आते थे कि ये इनाम हमें भी हासिल हो। तो इस तरह बच्चों में एक जज्बा पैदा होता है। तो अगर ये हौसला अफजाई अगर ये करें तो मेरे ख्याल में ये अच्छा अमल है। आलम साहब ठीक है, ये बात भी है कि हौसला अफजाई करने से आगे नंबर्स की दौड़ लग जाएगी, लेकिन कुछ माशरे के हमारे कुछ लोगों का ये ख्याल है कि डिग्री इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, जो नंबर्स हैं नॉट इम्पोर्टेंट, आप हुनर सीखें क्योंकि फ्यूचर हुनर का है। तो क्या समझते हैं इस बारे में, आपका क्या
रद्द अमल हो? नहीं देखें, जहाँ तक हुनर की बात है, ये अच्छी बात है, हुनर बंदे को ज़रूर सीखनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि तालीम मस्ट है। तालीम पहले हासिल करनी चाहिए, तमाम स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करें, उसके साथ हुनर सीखें। ये मैं आपको बता दूं कि बाज़ लोग कहते हैं कि यार पढ़ के क्या करना है यार, वालिदैन का पैसा भी ज़ाया हो रहा है, इतना अरसा आपने ज़ाया किया, आखिर में जाके जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अच्छा तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बेहतर है कि अपने बच्चों को कोई हुनर सिखाएं। तो मेरे ख्याल में ये ठीक बात नहीं। अगर लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो तालीम के साथ साथ हुनर सिखाएं, तो ये बेहतर होगा उनके फ्यूचर। तो अगर हम इसी तनाजुर में देखें तो हाल ही में जो हेल्थ के अंडर जो ज़ेर एहतमाम टेस्ट हो रहे थे, उसमें यही बात आ रही थी कि पेपर बहुत मुश्किल बना है। क्या तालीम में वो बहुत सारे मसाइल हैं, या तालीम वो हासिल नहीं हो रही बच्चों को जो कि ऐसे टेस्ट पास करने के लिए ज़रूरी होता? देखिए ताहिर साहब, बात यह है कि हालिया जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो टेस्ट हुए उसमें सेक्रेटरी हेल्थ के ख़िलाफ़ लोगों ने एहतिजाज किया कि पेपर मुश्किल बनाया है, ये किया है, वो किया है। ये सब फ़र्ज़ी बातें हैं, मतलब यानी अपनी नालायकी के ऊपर पर्दा डालने वाली बात है। अब अगर पेपर मुश्किल बनाया तो आपको काबिल होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि अब बाज़ बच्चे, मैं देखता हूँ यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे जो हैं वो जाके यहाँ से गिलगित के अंदर वो अपना सेंटर नहीं रखते हैं, या जीबी के अंदर अपना सेंटर नहीं रखते हैं, एग्ज़ामिनेशन सेंटर वो रखते हैं कोहिस्तान में। क्यों? वहाँ पे शायद कोई फ्री हैंड दिया जा रहा होगा, नकल की कोशिश वो वहाँ से कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ से जाते हैं कराची और कुछ जाते हैं यहाँ से हैदराबाद। वहाँ सुनने में आया कि पेपर्स जो हैं वो आराम से वो नकल के ज़रिए हल करते हैं। तो अब वहाँ से नंबर लेके जब वो यहाँ आते हैं तो ऐसे टेस्ट में जब वो शामिल होते हैं तो उनको कुछ लिखना आए नहीं, तो फिर टेस्ट को कैसे वो क्वालिफाई करें? ये एक मतलब यानी सोचने वाली बात है। हर बात को गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करना या गवर्नमेंट को मोरिद इल्ज़ाम ठहराना, ये ठीक नहीं है। बच्चे पढ़े, काबिल हों, तो मेरे ख्याल में काबिल बच्चे का रास्ता कोई भी मेरे ख्याल में नहीं। सही बात है, काबिल बच्चे का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया आलम साहब आपके वक्त का। तो नाजरीन, अच्छा ताहिर साहब, मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूँगा। ये जैसे अभी जो टॉपर बच्चे हैं या जो बच्चियाँ हैं, इंशाल्लाह हम अपने जेमन के इन प्रोग्रामों में हम उन बच्चों को हम इनवाइट करेंगे और यहाँ पे उनको बुला के हम उनसे पूछेंगे कि कैसे उन्होंने इतने नंबर गेन किए और क्या तरीक़ाकार है, क्या मैकेनिज़्म उन्होंने बनाया कि एजुकेशन में वो इतने आगे बढ़ गए हैं। सही बात है, बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर आलम साहब। तो नाजरीन, हमने आज बात की जो गिलगित बल्तिस्तान की ओवरऑल तालीमी सूरत हाल है, स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की हमने बात की। तो पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ मॉडल स्कूल्स यहाँ पे बनाए, उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आया है। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको मॉडल स्कूल्स डिक्लेयर किया जाए और वहाँ पे भी इसी तरह का रिज़ल्ट लाया जाए? साथ जो फैसले हुए हैं कि असातिज़ा जितने भी हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े, तो उन फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सकता? तो इस पर भी गौर करने वाली बात है। तो सूबाई हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इक़दाम बरोकार लाएं हंगामी बुनियादों पर कि मुस्तकबिल में इस तरह का रिज़ल्ट ना आए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।